So welcome back, guys. I hope you'll be fine. So you are studying well. Okay. Please study hard. Okay. And if you get any problem, and you can contact me. Okay. And hope that I'm trying to explain you topics in a very easy way. And if you get any difficulty, even you can go to other sources. Okay, I don't say that you only have to go through my teaching, but it's a visual learning. Okay, so you can go to Google, you can go to YouTube, you can go to other books. Okay, even you can listen to other teachers. Okay, but primary source is our book. Please be remember, primary source is our book, and thereafter I'm here for you because I know how to take you from the ICAP perspective. Okay, there will be different explanation, but that will be a general explanation. But I am giving you explanation with respect to ICAP कि आपसे ICAP कैसे पूछता है, उसके perspective में ICAP कैसे एग्जाम कंडक्ट करता है या किस तरह के MCQs डिजाइन करता है, उस हिसाब से I'm trying to explain you peoples. Okay, so last time I think we are done till lecture number 6. Yes, and today we are going to start with lecture number 7. And last time we were going through the communication process, and we were in the middle of the communication process. And last time, yes, we were discussing the noise factor. Yeah, first we discussed the sender. You know who the sender? You know who the sender? Just recall who the sender. Sender are two type of persons. One is actual person and other person in the form of organization. कि जब ऑर्गेनाइजेशन कोई कम्युनिकेशन करती है तो वो भी सेंडर कहलाती है. उसके बाद फिर हमने पढ़ा था रिसीवर. सेंडर जो मैसेज फॉरवर्ड करता है वो किसी रिसीवर को करता है. रिसीवर कुड बी अ पर्सन, कुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन, कुड बी अ बैंक, कुड बी अ गवर्नमेंट. इट कैन बी एनीवन to whom you are sending your message is called a recipient or receiver. Okay, thereafter we have gone through the medium. Okay, so वो जो sender मैसेज को फॉरवर्ड करता है उसको कोई शेप देनी है, विजिबल शेप देनी है, परहैप्स मोस्ट लाइकली उसको विजिबल शेप देनी है. और जो विजिबल स्पोकन फॉर्म में it's not a visible shape, but you can listen to it, you can listen to the words. But as far as the written communication is concerned, it always consists of a physical form. Okay? It must be having a clear physical form, like SMS, like email, like letters, like reports, okay, like memos. Okay, so we will study in detail कि कौन से मौके पे हमने लेटर का इस्तेमाल करना है, कौन से मौके पे हमने ईमेल का इस्तेमाल करना है, कौन से मौके पे हमने मेमो का इस्तेमाल करना है, कौन से मौके पे हमने सर्कुलर का इस्तेमाल करना है. इंशाल्लाह chapter 6, 7 and 8 are specifically designed for the written communication. Okay ji, so yes, we define the message in the form of a visible entity, I must say. Then this visible form of communication must be transmitted, must be channelized to the recipient. ठीक है जी. अब आपने SMS डिफाइन तो कर लिया, लेकिन SMS रिसिपिएंट को पहुंचेगा कैसे? जब आपके पास नेटवर्क की फैसिलिटी होगी, जब आपके पास बैलेंस होगा, जब आपके पास जिसको भेजना है उसका भी आपके पास नंबर अवेलेबल होगा. ओके, उसके पास भी नेटवर्क होगा. अगर आपने ईमेल करनी है तो दोनों के पास सेम फैसिलिटीज होंगी. एक्चुअली आपने उस मीडियम का इंतखाब करना होता है कि जो आपके रिसिपिएंट के पास भी सेम सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल हो. अगर उसके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो यू कांट फॉरवर्ड दैट मीडियम. ठीक है, सो हम चैनल का जो इंतखाब करते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन के रिसीवर और आप दोनों के पास सेम टेक्नोलॉजी होनी चाहिए या सेम sort of facility होनी चाहिए. So that is called the channel. Channel means route. Channel mean transmitting of the message. ठीक है, हर वो चीज जो facilitate करती है मैसेज को फॉरवर्ड करने में. ठीक है, हर वो सोर्स जो facilitate करता है मैसेज को फॉरवर्ड करने में is called a channel. I hope you understood. And thereafter I have gone through the noise factor. नॉइस में अब आपको बेटा मैंने ये बताया था कि जब भी हम मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, कि either in spoken form, either in written form,
सो सेंडर के एंड पे भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, ह्यूमनिस्टिक फैक्टर है, टू एरर इज ह्यूमन, ह्यूमनिस्टिक फैक्टर है, यू नो इट वेरी वेल। सो वो प्रॉब्लम सेंडर के साइड पे भी आ सकते हैं और वो प्रॉब्लम रिसीवर के एंड पे भी आ सकते हैं। ठीक है जी। अब वो दोनों साइड की जो प्रॉब्लम है, जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम, अच्छा ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं इन पे हमारा सम प्रॉब्लम से हमारा कंट्रोल होता है, सम प्रॉब्लम्स वी कैन we can have a good grip on it if we try to do it, if we try to cover them up, we can have good control on it, okay? But some of the problem that we don't have any control on it, okay? So हमने जब फर्स्ट जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था, जो हमने फर्स्ट जो डिस्कस किया था नॉइस फैक्टर, वो हमने फिजिकल डिस्कस किया था बेटा, कि फिजिकल में ये होता है कि वो फैक्टर्स, हर वो फैक्टर, नेचुरल फैक्टर, कैटास्ट्रोफी फैक्टर, स्टॉर्मिंग का फैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती, हर वो फैक्टर के जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दोज फैक्टर्स। ठीक है बेटा, यू डोंट हैव एनी specific, you can't do anything about those factors, okay? So natural factors होते हैं most likely, they are called the physical factor, they are out of your domain, they are external factors. Now the second factor is the second जो प्रॉब्लम आता है सेंडर के एंड पे या रिसीवर के एंड पे, वो है साइकोलॉजिकल। सपोज आप जब जहां पे आपको मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग से दो वर्ड्स बताए थे, एक होता है बेटा घड़ी का टाइम और एक होता है नफ्सियाती टाइम, ओके? अब जो घड़ी का टाइम होता है वो वाला टाइम होता है कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, लाइक यू आर राइट नाउ इन द प्रेजेंट मोमेंट, you right now you're listening to my lecture, this is a घड़ी का टाइम, okay? Like you are going through the same time as the time is moving on, okay? एक होता है नफ्सियाती टाइम, उसमें यह है कि बेटा या तो आप तीन ही टाइम होते हैं, या माजी है, या प्रेजेंट है, या फ्यूचर है, ठीक है जी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जब आप प्रेजेंट मोमेंट से निकल के, हाल से निकल के, नाउ से निकल के, मौजूदा कैफियत से निकल के जब आप माजी में स्विच ऑन कर जाते हैं, माजी में मूव ऑन कर जाते हैं, या फ्यूचर के बारे में कंसर्न होते हैं, तो वो चीजें आपको प्रेजेंट मोमेंट से हटा देती हैं। जब आपको हटा देती हैं आपके प्रेजेंट मोमेंट से, तो दैट टर्न आउट टू बी आ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इजी। और वो कुछ भी हो सकता है, जब आपकी कंसंट्रेशन लूज हो गई, मीन यू आर नॉट नो मोर हियर, अभी नो यू आर नो मोर इन द लेक्चर, उसमें हमने वर्ड डिस्कस किया था, देखिए फिर हमने डिस्कस किया था वैंडिंग ऑफ द माइंड, माइंड इज नॉट हियर, माइंड इज मूविंग अराउंड अगेन, प्रीऑक्यूपेशन, ऑलरेडी फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, यू आर ऑलरेडी इनटू सम इश्यूज, सम चैलेंजेस। सो ये हम डिस्कस, फिर हमने डिस्कस किया था बेटा फिजियोलॉजिकल के, जहाँ पे आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लाइक यस नींद का प्रॉब्लम है, हंगर का प्रॉब्लम है, आपके फटीगनेस हो जाती है, भूख लगती है, मतलब या आपको मिग्रेन होती है, ओके? सो वो प्रॉब्लम जो आपके, या आपके मैदे में प्रॉब्लम है, पेन हो रही है, या आपके टांग में कोई जख्म आ गया, समथिंग लाइक दैट, कि जहाँ पे आपके फिजिकल जो है ना वो इश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो दोज आर कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल challenges that pertain to your body, and then I'm going to discuss the semantic issues. वो semantic issues ये होते हैं, semantic noise ये होती है कि जहाँ पे जब हम पढ़े लिखे हो जाते हैं, जब हम educated हो जाते हैं, तो हम educated होते हैं by learning technical and difficult words. Like doctor become doctor because he learned different technical and jargon words. Okay? अब वो आपने जो सीख लिए हैं, आप अपनी फील्ड में तो उनको यूज कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि वो भी सीख चुके हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन you can't use with the general public, with the customer, because they didn't go through those words. हाँ, जो go through कर चुके हैं उनके साथ आप वो कम्युनिकेशन करें, वो वर्ड्स का इस्तेमाल करें, वो jargons का इस्तेमाल करें, no problem. लेकिन the people who have not gone through those words, you can't use those technical and jargon sentences or words at all. Okay, when you start using those words with those people who don't know those words, so that is called the semantic noise. Okay, so हमने last time यहाँ तक पढ़ा था. So now I'm going to write lecture number 7. ठीक है जी. Lecture number 7. For your assistance thereafter, I will write even chapter 1. I will write it. You should know that where I'm going through. Chapter 1. ठीक है जी. Chapter 1 हम go through कर रहे हैं, और इसका topic हम जो go through कर रहे हैं वो communication process. Let me write here.
कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो अब इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूं वो मैं डिस्कस करने वाला हूं फ्रॉम द distortion part. Okay, that's another problem that we most likely have in our communication. G. So let me open it. जी बेटा, so distortion. ये बेटा, अच्छा डिस्टॉर्शन बेटा ये होता है कि सेंडर, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूँ ताकि इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड लेटर ऑन। सेंडर और रिसीवर दोनों को माशाल्लाह से कोई इशू एज सच फेस नहीं हो रहा होता, दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर चैलेंज एट ऑल। ओके, उनको कोई एज सच ना कोई फिजिकल नॉइस की प्रॉब्लम है, ना कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, ना कोई फिजियोलॉजिकल, ना कोई बॉडीली चैलेंजेस हैं, और ना ही कोई सिमेंटिक का इशू आ रहा है। अब होता ये है कि जब सेंडर मैसेज फॉरवर्ड करता है टू द रिसीवर, ओके, तो रिसीवर जो है वो उसको उस तरह से क्लिक नहीं कर पाता, वो उसको उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, उस कॉन्टेक्स्ट में उसको नहीं ले पाता जिस कॉन्टेक्स्ट में सेंडर बात कर रहा होता है। या समटाइम ऐसा भी होता है कि सेंडर रिसीवर के कॉन्टेक्स्ट को गलत अंडरस्टैंड कर जाता है, उसके मुताबिक वो कम्युनिकेशन कर जाता है। जब उसके मुताबिक कम्युनिकेशन कर जाता है कि जो उसके कॉन्टेक्स्ट या उसकी तबीयत के मुताबिक नहीं है, या उसका मीनिंग ही, देखो हर बात के एक डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। अब रिसीवर किस मीनिंग में चला गया यू डोंट नो। अब आई गिव यू एग्जांपल, लाइक आप लोगों को सम टाइम पेरेंट्स जो है ना वो डांटते हैं, आप पे सख्ती करते हैं, अब वो आपके भले के लिए कर रहे हैं, उनका अब पर्पस डिफरेंट है, उनका अब ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, लेकिन आप उसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं कि हम मुझ पे सख्ती क्यों हो रही है, मेरे साथ ही आप ऐसा क्यों करते हैं। अब यहाँ पे आप बेटा क्या कर गए हैं, कहते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब कि सेंडर जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, सेंडर जिस पर्पस के थ्रू आपको वो मैसेज कन्वे करना चाह रहा था, आप उस पर्पस के बिल्कुल ऑपोजिट चले गए। मतलब वो बात कर रहा था ए की, आप बी में इन्वॉल्व हो गए, वो बी की बात कर रहा था, आप सी में इन्वॉल्व हो गए, आपकी पेज सेम। हाँ, आप अगर आप ए के करीब करीब होंगे तो इट्स फाइन, लेकिन आप एब्सोल्युटली यू वेंट ऑपोजिट टू वर्ड other person is trying to say. So that is called a distortion. So distortion and noise are often confused and referred to interchangeably as they both result in the same outcome. ठीक है जी, दोनों का आउटकम सेम होता है कि आपको मैसेज प्रॉपर्ली समझ नहीं आ रहा होता, हम और क्योंकि मैसेज समझ नहीं आ रहा होता, वी थिंक दैट बोथ आर सेम, but both are entirely different. ये कहना चाह रहा है कि that the message not being fully understood by the recipient. ठीक है नहीं, so message जो है ना वो रिसिपिएंट अंडरस्टैंड प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, दोनों केसेस में वो नहीं कर पा रहा होता। हाउएवर ताहम वेयर एज नॉइज डैमेजेस द मैसेज, मतलब डैमेज होता है कि अभी स्टिल द मैसेज इज देयर बट इट इज नॉट फुली कन्वेड और फुली अंडरस्टूड, सो दैट इज डैमेज। डैमेज होता है कि कुछ थोड़ा सा पार्ट उसका खराब हो गया। ठीक है, दैट इज एक्चुअली whereas the noise damages the that is actually transmitted, meaning that only an incomplete message is, not a complete message received. You can say less than 100%. Sometimes you understand 80%, sometimes you understand. And interestingly, I want to tell you something. As a human, in Allah पाक ने हम में noise रखी है, और naturally noise है। फरिश्ते जो हैं उनमें noise नहीं है, they understand 100%. ठीक है, but we don't understand 100%. हम we are not perfect. थोड़ा बहुत हमारे अंदर रहेगा तो एक्सेप्टेड, नॉइस को एक्सेप्ट करें, नॉइस को एक्सेप्ट करें। प्रॉब्लम होती है कि जब हम नॉइस पे हम स्ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यू टेक केयर ऑफ द फैक्टर्स टू कंट्रोल, लेकिन उसको ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना, क्योंकि ये नेचुरल है, ये आपका होना ही होना है। ठीक है जी, डिस्टॉर्शन रेफर्स टू द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कंप्लीट मैसेज। याद रखिएगा बेटा कि जहां पे भी वर्ड मिस का आएगा, मतलब वहां पे बात बिल्कुल आपके ऑपोजिट हो गई है। ये बात याद रखिएगा कि अब
लाइक मैसेज को जो अंडरस्टैंड करना था उसको अंडरस्टैंड करने की बजाय, अच्छा इंटरप्रिटेशन बेटा ये अंडरस्टैंड होता है कि मतलब आपने सिर्फ उस डेफिनेशन को या उस वर्ड को अंडरस्टैंड किया, मतलब उसको समझा कि वो कहना क्या चाह रहा है, ये है क्या। लेकिन जब आप उसको अपने हिसाब से लेते हो, उन चीज़ों को जब अपने हिसाब से डिराइव करते हो, अपने हिसाब से उनको उनका मुखफ़फ़ लेते हो, उनकी आप तशरीह लेते हो, उसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन यहाँ पे आपकी थिंकिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ ये है कि आपने रटा, मतलब आपने जस्ट उसको अंडरस्टैंड किया, जस्ट उसको आपने समझा कि ये क्या है, ये टेबल है, ये चेयर है, ये अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब आप उसको अपने हिसाब से आप इंटरप्रेट करते हो कि अच्छा ये इस ऐसे भी नहीं ऐसे हो सकती थी, इसका ये डिजाइन ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता था, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। सो इंटरप्रिटेशन इज वन स्टेप अहेड ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, I must say. So you understood that misinterpretation होती है that you're not able to understand the message the way it is. A common example would be the use of a humor in the message, which in the absence of visual signals and body language can often misinterpreting. होता है बेटा ये है, अब कहना ये चाह रहा है कि जब हम ह्यूमर करते हैं, तो जब मैं अभी आपके साथ में अगर फेस टू फेस ह्यूमर करूंगा अभी आपके साथ, तो मैं साथ थोड़ा सा स्माइल करूंगा, मेरा आई कांटेक्ट ऐसा होगा, मेरी वाइब्स आपको ऐसी मिलेंगी कि आपको फील होगा कि आई एम हैविंग अ जोक विथ यू। लेकिन अगर मैं वही जोक आपके साथ रिटर्न कम्युनिकेशन में कर जाऊंगा, रिटर्न कम्युनिकेशन में देयर इज नो स्माइल, देयर इज नो देयर इज नो आई कांटेक्ट, तो वो वाइब्स नहीं चाहते। तो वही मैसेज अगर आप रिटर्न कम्युनिकेशन में कर जाएंगे तो फिर वो इट गोना बी मिस इंटरप्रिटेशन, कि वो बड़ा ही वो अजीब सा लगेगा। तो यहाँ पे ये उसने इनडायरेक्टली बता दिया है कि रिटर्न कम्युनिकेशन में जहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होती, वहाँ पे आपके एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व, जहाँ पे आपके बेटा एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व नहीं होते, वहाँ पे फिर वहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ओके जी, और बिजनेस में द मोस्टली कम्युनिकेशन जो होती है, वो जो रियल कम्युनिकेशन होती है वो रिटन फॉर्म में होती है। पहले हम ओरल करते हैं, बोल के करते हैं, बिल्कुल हम करते हैं, लेकिन उसका भी प्रूफ लाना होता है। तो ऑल द कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस इन स्पोकन फॉर्म, उसको फिर हम ईमेल की शेप में करते हैं या लेटर की शेप में करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट की शेप में करते हैं। सो उसमें अब देखें, पर्सनल कम्युनिकेशन में सम हो आजकल उसको थोड़ा टच दे सकते हैं कि हम इमोजीज लगा देते हैं, स्माइलीज लगा देते हैं, तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है कि अगला बंदा किस इंटेंशन से बात करे। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में वी कांट यूज दो सॉर्ट ऑफ इमोजीज एंड स्माइलीज एंड those sort of expressions. So it is a simple communication in business writing, so we can't go through those sort of things. So then definitely distortion is there if you're going to have the humor in communication. So another example might be when a recipient interprets the message as having been a sharing of information, whereas the sender intended the message is to trigger an action. ठीक है जी, अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है बेटा कि most of the time if I take your example, like I am teaching you, तो आप ये समझ रहे हैं कि हमारा काम है सिर्फ इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करना, इस लेक्चर को सिर्फ सुनना, हमारा ये काम है। लेकिन मेरा ये एक पर्सपेक्टिव है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको सुनने के बाद इस पे एक्शन भी परफॉर्म करें। तो आप मिस इंटरप्रेट कर गए कि आपने सिर्फ ये समझा कि बस सिर्फ इसको सुनना था। जिस तरह आजकल हम स्टडीज करते हैं बेटा, हम पेपर देते हैं कि तो हम पेपर जो देते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ पढ़ना है, बस पास करना है, डेट्स, इसका हमारी जिंदगी में ऐसा कोई, उसको अपनी जिंदगी में भी अडॉप्ट करना होता है। अनदर एग्जांपल माइट बी लाइक आपके पेरेंट्स आपको समझाते हैं तो आप कहते हो बस वो ठीक है समझ लिया, लेकिन आप उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म नहीं करते। असल जो मैसेज की जो रूह होती है, जो उसका क्रक्स होता है, जो उसका नटशेल होता है, वो ये होता है कि आप उस पर एक्शन भी परफॉर्म, सिर्फ सुनना मकसद नहीं है, एक किताब को पढ़ना मकसद नहीं है, एक किताब को पढ़ना मकसद नहीं है, एक लेक्चर को सुनना मकसद नहीं है बेटा। ठीक है, जो आप सुन रहे हो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करो, जो आप पढ़ रहे हो वो आपकी लाइफ में नजर भी चीज आनी चाहिए। तो सिर्फ सुनना, सिर्फ मेरे लेक्चर को सुनना, सिर्फ इस किताब को पढ़ना मकसूद या मकसद या पर्पस नहीं है। असल मकसद बेटा क्या है कि आप इसको सुनने के बाद, इस किताब को पढ़ने के बाद उसके मुताबिक आपकी पर्सनैलिटी भी नजर आए, उसके मुताबिक आपकी कम्युनिकेशन भी नजर आए। अगर उसके मुताबिक आपकी जिंदगी ढल रही है, मीन यू आर गोइंग थ्रू अ गुड नॉलेज।
Okay ji, so I'm done with the distortion part. I hope you understood. Then I'm going to the message. Unfortunately, I must say कि उसने message को इतना दूर जाके explain कर दिया. He was supposed to explain the message in between somewhere before the medium. Okay. अब message जो होता है बेटा, actually मेरा देखें आज मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं तो इस लेक्चर में एक्चुअली मैसेज क्या है. आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी देखना मकसद नहीं है. मूवी जो है वो एक मीडियम है. जब उसको देख रहे हैं तो वो एक चैनल है. अब उस मूवी से आपने सीखा क्या? आप एक लेक्चर सुनते हैं, एक रिलीजियस जो है ना वो लेक्चर सुनते हैं, किसी मौलवी साहब का लेक्चर सुनते हैं, या आप डिफरेंट टीचर्स का लेक्चर सुनते हैं, या यूट्यूब पे आप डिफरेंट वीडियोस देखते हो. आपने मैसेज क्या गेन किया? तो यहां पे उस मैसेज की वो बात कर रहा है. अंडरस्टूड बेटा? सो a message is the actual object of communication. कि एक्चुअली आप उसमें से निकालते क्या हैं, एक्चुअली उसमें है क्या. जिस तरह से आप दूध पीते हैं तो दूध पीना इज नॉट इम्पोज. दूध के पीने से आपको क्या एनर्जी मिलती है, दैट्स अ मैसेज. या आप ड्रिंक पीते हैं तो ड्रिंक पीने से आपकी बॉडी पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, दैट्स अ मैसेज. सो चीजों का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजों के होने से आपको मैसेज क्या मिल रहा है, आपको उससे एक्चुअली मिल क्या रहा है, व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड अ मैसेज. ये कहना चाह रहा है कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है जो असल आपका जिंदगी का मकसद होना चाहिए. वो चीजें नहीं होनी चाहिए बल्कि उन चीजों से आपको हासिल क्या हो रहा है. अगर वो चीजें आपको अल्लाह पाक के करीब कर रही हैं, अगर वो चीजें आपको अपनी जिंदगी के मकसद के करीब कर रही हैं, अगर वो चीजें आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में हेल्प आउट कर रही हैं, देन गो फॉर दोस थिंग. लेकिन एक ऐसी चीज है कि जो आपको अपने मकसद से दूर कर रही है, जो आपको आपके अल्लाह से दूर कर रही है, जो आपको आपके दीन से दूर कर रही है, जो आपको आपके रियल ऑब्जेक्टिव से दूर कर रही है, तो डोंट गो फॉर दैट मीडियम, आई मस्ट से. So the communication that contain information, मैं उसका आगे पढ़ रहा हूँ बेटा. अच्छा, okay, I'm going to go through again for you. A message is an actual object of communication. The communication that contains information, वो कोई information हो सकती है, कोई जो जनरल information, जिस तरह से हम न्यूज़ हमें मिलती हैं, टीवी पे information जो आती है, एडवाइस कोई आपको नसीहत कर सकता है, आगे न्यूज़ भी है, ठीक है, a request, RC, कुछ भी हो सकता है बेटा. It can be anything. It can be anything. Whatever you imagine. ये डिफरेंट फॉर्म में हमें मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं. देखिए, तो आपने उसमें से मैसेज गेन करना होता है. और हर मैसेज को कोई पॉलिटिकल मैसेजेस होते हैं, कोई रिलीजियस मैसेज होते हैं, कोई इंसानियत के मैसेजेस होते हैं, कोई बीमारी के मैसेजेस होते हैं. मतलब आजकल जो मीडिया पे मैसेजेस चल रहे हैं वो कोरोना के चल रहे हैं, ठीक है. तो वो न्यूज़ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उस न्यूज़ में जो मैसेज है दैट इज इम्पॉर्टेंट. और मैसेज ट्राई टू डिलीवर द मैसेज, try to deliver the medium that has positive message, I must say, that have positive, जो लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करे, ना कि उनमें डिप्रेशन लेकर आए, उनमें स्ट्रेस लेकर आए. फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी एन आइडिया और थीम एन एडवर्ड. एडवर्ड बेटा होता है बेसिकली इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट. कोई भी एडवर्टाइजमेंट होती है तो एडवर्टाइजमेंट दिखाना मकसद नहीं होता. उस एडवर्टाइजमेंट में आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट. बेटा गल समझ आई? एडवर्टाइजमेंट, आपको ढेर सारी एडवर्टाइजमेंट नजर आती है रोड्स के ऊपर, वो एडवर्टाइजमेंट का दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है. टीवी पे एडवर्टाइजमेंट का दिखाना, उसमें से आप मैसेज क्या लेते हैं, आपका माइंड क्या क्लिक करता है, इंटरप्रिटेशन आपको क्या आती है, दैट इज इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, आर नोटिस, आर अनाउंसमेंट, a notice or announcement promoting a product, service or event or publicizing a job vacancy. अब different तरह बार को उठाएं तो उसमें जॉब की वैकेंसीज भी होती हैं, वो डिफरेंट मैसेज है, ठीक है. कुछ मैसेज वो पॉलिटिकल नेचर, मोस्टली जो मैसेज होते हैं वो पॉलिटिकल नेचर के होते हैं, कुछ रिलीजियस मैसेजेस होते हैं, तो हर तरह के मैसेजेस में होते हैं. कुछ बिजनेस के मैसेजेस होते हैं जहाँ पे बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट होती हैं, कुछ कॉलेजेस के मैसेजेस होते हैं, स्कूल के मैसेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी के मैसेजेस होते हैं. तो ये कहना चाह रहा है कि डिफरेंट मैसेजेस होते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है ना वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को भी मार्केट किया जा रहा होता है, सर्विसेज को मार्केट किया जा रहा है. बेटा प्रोडक्ट और सर्विस में क्या फ़र्क है? प्रोडक्ट होती है जहाँ पे फिजिकल चीज़ों, जहाँ पे चीज़ों को टच कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड अ
product. Or like now I'm giving you the lecture, that's a service. ठीक है, आप बैंकिंग इज अ सर्विस, वहाँ पे आपको फिजिकल चीज़ नहीं मिल रही, लाइक वहाँ पे आप सर्विसेज गेन करते हैं मोस्ट लाइकली. एंड अगर आप फ्रिज बाय करते हैं, अगर आप टीवी बाय करते हैं, अगर आप कोई खाने पीने की चीज़, तो दैट्स अ प्रोडक्ट, दैट इज नॉट अ सर्विस. Okay, are the central or primary content or information that passes from sender to receiver. ठीक है जी. So वो एक प्राइमरी मैसेज होता है, जो हमें जो नजर आता है बेटा वो प्राइमरी नहीं होता, उस जो नजर आ रहा होता है या जो हम सुन रहे होते हैं उसमें जो मैसेज होता है दैट्स प्राइमरी. सो चीज़ों का दिखाना या चीज़ों का सुनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस दिखाने में या सुनाने में आप मेन चीज़ क्या दे रहे हो, मेन मैसेज क्या डिलीवर कर रहे हो, that's a primary content, that's a central content. The central or primary content ultimately refers to a reason for sending the message. ठीक है, उसके पीछे मकसद क्या, आप मैसेज फॉरवर्ड क्यों कर रहे हो, रीजन क्या है, that's called the primary content. Or for example a request by a manager for an employee to prepare report by the end of a day. ठीक है, अब मैनेजर ने एम्प्लॉय को एक मैसेज किया ईमेल की फॉर्म में, या उसको कह दिया कि मुझे शाम तक रिपोर्ट चाहिए. अब जो शाम तक रिपोर्ट चाहिए वो मैसेज है, वो प्राइमरी मैसेज है. ठीक है, अब वो मतलब वो जो मैसेज डिलीवर करना था that was not concern. मैसेज डिलीवर क्यों किया गया, क्योंकि उसको शाम तक रिपोर्ट चाहिए. वो जो शाम तक रिपोर्ट है that's a primary content. I hope you understood. Next, move on. In business term, the message might be answer to a question. अब interestingly, I tell you something. Every day, in every lecture, you have question from me. ठीक है, सर बताएं सर डिस्टॉर्शन क्या होती है, सर बताएं मैसेज क्या होता है, सर बताएं फीडबैक क्या होता है, सर बताएं नॉइस क्या होता है. एंड आई एम गिविंग यू द आंसर. आई एम हियर, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम लायबल टू गिव यू द आंसर द वे यू अंडरस्टैंड द मैसेज. The way you understand the answer, I'm supposed to give you the message in the same way. Okay, so आपके questions हैं, I'm giving you the answer. So जो यहाँ पे जो main जो primary content है वो ये है कि I'm not important, my delivery is not important, okay, my expressions are not important. जो main चीज़ important है कि आपको understand हो. You get the answer of what is here in the book. That's the primary thing. That's the central thing. Then the second point, second bullet point discussing here, that why we send a message in business. This is also a business environment. Information that the recipient should remember that could be useful in the future can be referred to as for your future FYI. ठीक है जी. अब just tell me one thing. आपने अभी तक जो नॉलेज गेन किया, 12 साल हो गए हैं, 13 साल हो गए, अभी ये नॉलेज क्या अभी आप इसको अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ में? नहीं अप्लाई. अभी इसकी जो एप्लीकेशन होनी है वो फ्यूचर में होनी है. तो नॉलेज पहले गेन किया जाता है और इट्स अ लेंथी प्रोसेस. To get the knowledge is a lengthy process. और जब आप knowledge gain कर लेते हैं, a time come then when you have to apply that knowledge to the practical life. तो ये कहना चाह रहा है कि knowledge की जो पहले आप knowledge gain करते हो, आंसर में आप you get the knowledge and then you after a lapse of time, after a gap of time, you apply the same knowledge to the practical life. ठीक है, practical life दो तरह की होती है, एक आपकी जो family life होती है और एक आपकी जो family life. Yes, you can apply right now. But you can apply right now, but you don't apply in a real sense. But once you become mature enough, once you go to the practical life, once you go into the suppose after the marriage life, when you're going to have your own family, or when you're going to have your own job or your own business, then you need these things to apply in your life. So the third bullet point is a call to action. ठीक है जी. Ask your recipient to do something. Ultimately, beta, I am here to deliver you. Not just to deliver you. मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना नहीं है, सिर्फ बताना नहीं है, बल्कि मैं तब खुश होऊंगा, मैं I feel happy, this Rise will feel happy, we will feel happy, your parents feel happy when you perform action on it. So बेटा किसी मैं again saying you, पढ़ना मकसद नहीं है, सुनना मकसद नहीं है. उस पढ़ने के बाद, उस सुनने के बाद आप उसके मुताबिक जब अप्लाई करते हो, उसके मुताबिक जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो अपनी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी उसके मुताबिक नजर आती है, दैट इज अ रियल नॉलेज. नॉलेज इज नॉट व्हाट यू गेट, नॉलेज इज व्हाट यू डिपिक्ट फ्रॉम योर एक्शंस. ये कहना चाह रहा है कॉल टू एक्शन अल्टीमेटली. फिर तीसरा मकसद ये होता है मैसेज कन्वे करने का कि अब आप जैसे मार्केटिंग वाले हैं, उनका मकसद आपको दिखाना नहीं है, जो आपको मैसेजेस आते हैं, SMS आते हैं, इनका मकसद आपको दिखाना नहीं है कि ये देखो हमारी नई प्रोडक्ट है, बल्कि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं दैट नाउ यू बाय देयर प्रोडक्ट. That's called the call to action. They call you for the particular action, for a specific
I've gone through the second message part. Now I'm going to go through the feedback, the last and the most critical part, the most important component of whole communication process. फीडबैक पहले नहीं आएगा बेटा, जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, when you understand, when you perform actions, and ultimately you have to tell that how good you perform or how good you understood what you're supposed to understand. So that is called the feedback. So feedback is a confirmation. आप confirm करते हो कि आपको कितना understand हुआ. अब यहाँ पे मैं आपसे feedback तो नहीं ले सकता. अगर आप क्लास में हो तो I'm gonna take every day your feedback. हाँ जी बताया कल जो हमने पढ़ा था उसमें ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है. Okay, but in this case it's difficult for me. But I can't take your feedback. But definitely ICAP is gonna take your feedback, and that is more dangerous because if I take your feedback here, you're going to perform much better in the final exam. But now you're just reading, you're just going through, you're just listening. Now this feedback is more critical because you're not going to have so much exposure to the actual feedback. So once it comes a feedback, then you become more fearful. What's going to happen? But if you're with me, physical form, I'm going to have your feedback like 50 times. 20 times every second है जी बेटा बताएं इसका क्या मतलब है, बेटा इसको explain करें. So it was easy for you to go to the final exam. So that's called the feedback. Feedback is a confirmation. आप confirm करते हो, response that a message has been received and understood. पहला message receive करते हो, then understood करते हो, and then you confirmed how much you understood the message. ठीक है जी. During email communication, this may take the form of a very brief email confirming recipient of a sender's initial email. ठीक है जी. तो sender ने आपको बेटा email की, इनिशियल ईमेल की, आपने सिर्फ कह दिया यस आई रिसीव द ईमेल. क्या आपने सिर्फ ये बोल दिया आई रिसीव द ईमेल. अब सिर्फ जब आप कहते हो आई रिसीव द ईमेल, इट इज अ हाफ फीडबैक, क्योंकि सिर्फ रिसीविंग इज नॉट, यू डिडंट टेल दैट हाउ मच यू अंडरस्टूड द मैसेज, हाउ मच यू परफॉर्म एक्शन ऑन इट. तो सिर्फ आप कंफर्म कर दो कि आई रिसीव द मैसेज, द हाफ फीडबैक. सिर्फ आप ये कह दो कि सर यस वी आर रिसीविंग योर lectures, we are receiving your videos, is a half feedback. The real feedback comes that when you say yes, we received your lectures, we understood your lectures, and we perform accordingly. We had the same action as you told. So that is a complete feedback. However, such a brief reply in itself doesn't necessarily confirm that a message has been correctly understood. It doesn't mean कि आपको, कि अभी आपने half response दी है, अभी आपको जो reply है वो half है, अभी आपको जो जवाब है वो complete नहीं है. This is where a longer response can help to articulate. ठीक है. अब इस सिचुएशन में आपको लॉन्गर रिस्पॉन्स चाहिए टू उसको वाज़ह करने के लिए, आर्टिकुलेट उसको वाज़ह करने के लिए, उसको क्लियर करने, एग्जैक्टली द मैसेज दैट द रिसिपिएंट हैज अंडरस्टूड. तो आपको ज़्यादा आर्टिकुलेट करना पड़ेगा, ज़्यादा क्लियर में बताना पड़ेगा कि आपने अपनी ईमेल में ये मेंशन किया हुआ है, पहला आपने ये पॉइंट मेंशन किया, उसका मतलब ये है, मतलब उसमें आपने उसको डिटेल फॉर्म में रिप्लाई की है, एक एक पॉइंट का रिप्लाई की है, और आपने एक्शन का भी बताया दैट हाउ मच यू परफॉर्म द एक्शन. So that is a complete feedback. Feedback is a powerful technique when used in verbal communication. अच्छा, verbal communication suppose face to face telephonic or video, जहाँ पे अगले बंदे को आप देख पा रहे हो तो उसके facial expression से हमें आइडिया हो जाता है कि how much you understand. Like उसकी eyes बता देती हैं, उसका जब he is understanding तो उसकी different vibes होती हैं. He feel happy, he or she feels happy, you feel happy when you understand something. Just think about, okay? और जब when you're not able to understand तो आपको नींद आना शुरू हो जाती है, you feel boredom. ठीक है, आपको जवाइयाँ लेना शुरू कर देंगे, यौनिंग करना शुरू कर देंगे. सो ये इटसेल्फ, अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन में जहाँ पे स्पोकन फॉर्म में होती है वहाँ पे फीडबैक फौरन मिल रहा होता है, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस मिल रहा होता है, एट द सेम टाइम मिल रहा होता है, लेकिन जहाँ रिटन कम्युनिकेशन होती है वहाँ पे फीडबैक थोड़ी देर, हाँ अगर ऑनलाइन है तो वो भी आपको आजकल जल्दी मिल जाता है, ऑनलाइन के तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट ऑनलाइन यस यू गेट immediately. लेकिन लाइक ईमेल की फॉर्म में, एसएमएस की फॉर्म में, when he or she gonna have time, they're gonna reply you back. So उसमें काफी देर के बाद आपको फीडबैक मिलता है. A simple exchange may involve the following. Person, first bullet point, person one state their point when a person two listens to. ठीक है जी. So person, जिस तरह से मैं person one हूँ, आप person two हो, तो I'm interpreting, no, I am stating my point to you people. You are person two and you are listening to the point that I'm making to you. Person two then repeats back in their own mind. फिर आप उसको इंटरप्रेट करते हो, अपने हिसाब से उसको रिपीट करते हो, that what they understood the message to be, कि क्या मैसेज है, then you understand accordingly.
Then last is person 1 confirm that a message that a person 2 has received is a message they meant to communicate. Great, ठीक है. फिर जो sender है, okay, वो दोबारा confirm करता है, okay, कि मैंने जो आपको मैसेज डिलीवर किया था आपने उसको कैसा, कि ये तो नहीं हुआ कि मैं आपको बात कर रहा हूँ, सपोज मैं आपको बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद की और आप पहुंचे मैं कराची, मैं आपको बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क की तो आप पहुंचे मैं यूके, मैं आपको बात कर रहा हूँ बीसी की तो आप पहुंचे मैं क्यूएम में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल की तो आप फैमिली में चले गए. ये मोस्ट लाइकली इस में बहुत ज़्यादा होता है कि आपका माइंड, योर माइंड इज लाइक अ मंकी. ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ योर माइंड इज लाइक अ मंकी. आराम से टिक नहीं सकता, ये आराम से बैठ नहीं सकता, ये कभी इधर मूव करेगा कभी इधर मूव करेगा. ठीक है, तो इसको एक जगह पे टिका के रखना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होगी कि योर माइंड स्टिक टू वन पॉइंट. अगर आप ये काम कर गए तो आपके लिए दुनिया में जन्नत है फिर. But it's really tough. You have to put a hell of effort to fix your mind to a particular area. Okay ji, so I'm done with, alhamdulillah, I'm done with communication process. So I discuss all of these points. So beta, if you get any I hope I explain you in a much easier way. And if you get any problem, again I'm saying you that I'm available for you. You have my contact ID. Let me give you again my contact ID. Okay, this is my contact ID. Contact number. Okay, so you can contact me anytime, not anytime. So you can contact me, and whenever I find time, I'm gonna respond you back. Okay, ji. So that's it from the communication process. Now I am moving for the next topic, and the next topic is the context. Yes, so next topic beta is the context. I'm going for the context topic. So first I discuss the communication process. Now I'm moving for the next topic, and the next topic is beta is the context. Okay, so बेटा इंसान जो है ना वो 3 कैफियत में रहता है. इंसान 3 डिफरेंट फीलिंग्स में रहता है. या तो वो माजी में रहता है, या वो प्रेजेंट में रहता है, या वो फ्यूचर में रहता है. ठीक है, अब ये उसके 3 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैं. ओके, ये एक तो ये पर्सपेक्टिव हो गया. अभी आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है बेटा? राइट नाउ आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है? आप बीसी का लेक्चर सुन रहे हो. इसके बाद जब बीसी का लेक्चर खत्म हो जाएगा फिर आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा. फिर सपोज प्रोबेबली आप शायद क्यूएम का लेक्चर सुनना शुरू कर दें, कोई और काम करना शुरू कर दें. ठीक है, अब जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं उस वक्त आपका कॉन्टेक्स्ट क्या? कॉन्टेक्स्ट आपका चेंज हो गया. जब आप बाजार में जाते हैं आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया. सो इंटरेस्टिंगली हर मूवमेंट में हम अपना कॉन्टेक्स्ट चेंज कर रहे होते हैं, और हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती है. अब सपोज आप मस्जिद में जाएंगे तो हम जितनी भी कम्युनिकेशन करने वाले हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट की बेस पे करने वाले हैं. अब सपोज आप बाजार में जाते हैं तो आप बाजार में जो आपकी कम्युनिकेशन होनी है वो बाजार के कॉन्टेक्स्ट में होनी है. ठीक है, अब उसके बाद आप सपोज आप ऑफिस में जाते हैं या आप किसी बैंक में जाते हैं और वहां पे जो कम्युनिकेशन होनी है वो बैंक के कॉन्टेक्स्ट में होनी है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट. So let me go through word by word. It is bit in a wordy form, so please with me. ठीक है, इसमें ज़्यादा explanation है. Yes, so the sender must appreciate. I'm gonna go through from the right from the start of this topic. The sender must appreciate the context in which they are communicating a message in order to ensure they adopt the most appropriate way to communicate information. ठीक है जी. अब मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है बेटा? यहाँ पे पहले मेरा कॉन्टेक्स्ट होता था फिजिकल फॉर्म में कि स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो वहाँ पे डिफरेंट वे में कम्युनिकेशन होती थी. नाउ दिस टाइम आई एम ऑन द स्क्रीन, आई एम विद यू, तो आई एम ऑन द कैमरा. अब दिस टाइम आई हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन टू यू. यहाँ अब मेरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया. अब अगर आप फेस टू फेस मेरे पास होते तो मेरा कॉन्टेक्स्ट होना भी वेरी डिफरेंट. But now in front of the camera, my context is very different.
विजुअल माई कॉन्टेक्स्ट इज वेरी डिफरेंट। तो ये कहना चाह रहा है कि आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपनी कम्युनिकेशन को अप्रोप्रिएट करना होता है। अप्रोप्रिएट होता है उस हिसाब से अपने को चेंज करना होता है। मतलब जैसे फेस टू फेस में पॉसिबल है वैसे कैमरा के सामने पॉसिबल नहीं है, जैसे कैमरा के सामने पॉसिबल है वैसे आप जब ऑनलाइन मीटिंग्स करेंगे, जब ऑनलाइन क्लास अगर होती तो वैसे पॉसिबल नहीं है। तो हर एक का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। एज वेल एज कंसिडरिंग होम द रिसीवर इज, रिसीवर कौन है उसके मुताबिक भी फिर आप पहले सिचुएशन आ गई, फिर पहले सिचुएशन की बात की, आप रिसीवर की बात की, पर्सन की बात, उसके मुताबिक फिर आपने कम्युनिकेशन भी करनी होती है। बच्चा है तो उसके मुताबिक कम्युनिकेशन करो, अगर यंगस्टर है उसके मुताबिक कम्युनिकेशन करो, मेल है उसके मुताबिक, फीमेल है उसके मुताबिक, बुजुर्ग है उसके मुताबिक, एजुकेटेड है उसके मुताबिक, अनएजुकेटेड है उसके मुताबिक। तो ये चीज़ें सारी काउंट करनी होती हैं। एंड द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग, और उसके साथ आपने किस नेचर की कम्युनिकेशन करनी है उसके मुताबिक आपने अपने वे को मॉडिफाई करना होता है या चेंज करना होता है। दे मे आल्सो नीड टू फैक्टर इन फॉर एग्जांपल वेदर द मैसेज इनकॉर्पोरेट्स गुड न्यूज और बैड न्यूज। डेफिनेटली गुड न्यूज डिफरेंट वे में डिलीवर की जाती है, बैड न्यूज इज गोइंग टू डिलीवर वेरी डिफरेंट वे। जब बैड न्यूज होगी तो आप हंसेंगे नहीं, लाइक फौतगी हो गई है, एनी पर्सन डाई, सो यू हैव टू इन्फॉर्म और दे हैव टू इन्फॉर्म यू, तो वो हंस के आपको इन्फॉर्म नहीं करने वाले, डेफिनेटली वो एक सैड से मूड में होंगे। सो न्यूज़ के साथ आपकी सारे एक्सप्रेशन और सारे आपके वर्ड्स भी चेंज जाते हैं। वेदर इट मे द टाइम क्रिटिकल और वेदर इट मे रिक्वायर डिसीजन टू बी मेड। ठीक है, टाइम क्रिटिकल होता है कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपने जल्दी इन्फॉर्मेशन देनी है, वो जल्दी इन्फॉर्मेशन देनी है वो आप डिफरेंट वे में देने वाले हैं। वो आप सपोज आप कॉल करें, इमीडिएटली आप कॉल कर देंगे, लेकिन इफ़ यू हैव एनफ टाइम सो आप उसको SMS भी कर सकते हो, आप उसको ईमेल भी कर सकते हो। बट इफ़ यू जस्ट हैव टू टॉक ऑन इमीडिएट बेसिस, so you will look for the online status. If you're not online then you're going to call him. ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि टाइम, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, जहाँ पे टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कम्युनिकेशन इटसेल्फ। और वेदर इट मे रिक्वायर डिसीजन टू बी मेड, तो आप डिसीजन जब होता है, जब डिसीजन होते हैं तो उसके लिए फिर कम्युनिकेशन डिफरेंट वे में करनी होती है ताकि अच्छे तरीके से फैसले परफॉर्म हो सकें। सो contextual consideration when selecting the appropriate form of communication include, ठीक है जी, फॉर्मल, ठीक है जी। अब हम ये अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपने देखने होते हैं व्हेन यू गोना हैव दी, व्हेन यू, मतलब जब कॉन्टेक्स्ट में आपने किन फैक्टर्स को देखना होता है। देखिए, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स बट देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस बुक। लेट मी गो थ्रू दीज पॉइंट्स। द फर्स्ट contextual factor is the formal versus informal. Okay, the second is confidential versus non-confidential. The third is urgent versus non-urgent. The fourth one is internal versus external. So let me go through in a quick form, formal versus informal. ठीक है जी, कुछ environment ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ situations ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको formally behave करना होता है। formally होता है कि जहाँ पे आपको conscious होना होता है, जहाँ पे like आप boss के सामने you are supposed to be formal, टीचर के सामने यू आर सपोज टू बी फॉर्मल, अपने फादर के सामने यू आर सपोज टू बी फॉर्मल। ठीक है, जो वर्टिकल में होते हैं, उन जो आपसे ऊपर होते हैं उनके साथ आप मोस्टली फॉर्मल होते हैं। ठीक है, और जो आपके दोस्त यार हैं, जो आपके जिनके साथ आपका रिलेशनशिप बड़ा फ्रैंक है, उनके साथ आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये हमने देखना होता है कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, इट्स अ फॉर्मल सिचुएशन और इनफॉर्मल सिचुएशन, पर्सन क्या है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल के फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस लेटर्स एंड रिपोर्ट, वेयर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंक्लूड टेलीफोनिक कॉल एंड फेस टू फेस कन्वर्सेशन। मजे की बात बेटा ये है कि जो रिटन कम्युनिकेशन होती है, जो रिटन कम्युनिकेशन होती है वो मोस्ट लाइकली फॉर्मल होती है, क्योंकि हम सोच समझ के लिखते हैं। मतलब हम, आपने बॉस को कोई ईमेल करनी है, अभी भी याद करेंगे जब आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे, छुट्टी की एप्लीकेशन, आप कैसे लिखते थे, जनाब आली, वो सारा वो लिखते थे, टू द प्रिंसिपल, इफ यू टॉक अबाउट इन इंग्लिश, टू द प्रिंसिपल, राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, गार्डन टाउन लाहौर, डियर सर, एप्लीकेशन फॉर लीव, it is to inform you that I'm on holiday for whatsoever reason. So वहाँ पे आप बड़ा कॉन्शियस होके लिखते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको बड़ा सोच समझ के जो भी कम्युनिकेशन करनी होती है वो करते हैं आप लोग। लेकिन जब भी आप टेलीफोनिक कॉल करते हैं, फेस टू फेस डिस्कशन करते हैं, तो पहले हम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, उसका हाल चाल पूछते हैं। अब इधर हाल चाल का पूछना है या उसके फैमिली का पूछना है या कोई पर्सनल बातें करनी है, ये जो है ना, ये फॉर्मल में चीज़ें
फॉल नहीं करती, दीज आर इनफॉर्मल्स। तो हम जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं या फेस टू फेस करते हैं तो इनिशियली जो हमारी स्टार्टिंग फेज होती है वो मोस्टली इनफॉर्मल होती है, हम कभी भी डायरेक्टली बात नहीं करते, जो मैसेज होता है वो हम बाद में डिलीवर करते हैं। अच्छा मैंने इसलिए कॉल की थी, मेरा ये काम था, लेकिन पहले आप ज़रूर थोड़ा सा हालचाल पूछते हैं। इट लुक्स बैड कि आप डायरेक्टली जो है ना अपने पॉइंट को डिस्कस करना शुरू कर दें व्हेन यू गोना कॉल टू अ पर्सन, व्हेन यू मीट अ सर्टेन पर्सन। तो पहले हम उसको अस्सलाम वालेकुम या इस तरह का थोड़ी सी फ्रैंकनेस क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उसके बाद ही हम मेन मैसेज की तरफ आते हैं। कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन हाउ यू कम्युनिकेट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड कंपेयर टू हाउ यू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट और सप्लायर इन द वर्क प्लेस। डेफिनेटली अब आप कंपेयर करो कि आप फैमिली से कैसे कम्युनिकेशन करते हो। अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहा है वो रिलेशनशिप का कर रहा है, क्योंकि फैमिली से आपका रिलेशनशिप बड़ा फ्रैंक होता है। तो जहाँ पे रिलेशनशिप आपका फ्रैंक होता है वहाँ पे आप इनफॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन क्लाइंट के साथ या सप्लायर के साथ आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और आप इतने फ्रैंक नहीं होते। जहाँ पे इतनी फ्रैंकनेस नहीं होती देन वी आर सपोज्ड टू हैव द फॉर्मल कम्युनिकेशन। Compare this with communication the workplace where communication is normally much more formal and less spontaneous। ठीक है जी। अब इसको कंपेयर करें कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर जॉब कर रहे हैं, अगर आपका अपना बिजनेस या जॉब कर रहे हैं तो वहां पे आप कितना फॉर्मल होंगे और लेस स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस बेटा होता है कि सडनली लाइक आपके 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 सामने दोस्त आया तो आप सडनली बात करना शुरू कर देंगे, लेकिन बिजनेस में आप सडनली बात नहीं करते, आप सोच समझ के बात करते हैं। स्पॉन्टेनियस होता है कि सोचे समझे बगैर बात शुरू कर देना, मतलब यू आर नॉट सो मच इनटू योरसेल्फ, यू आर नॉट सो मच कॉन्शियस व्हाट यू आर सेइंग। बस आप बात किए जा रहे हैं जो आपके ज़बान में बात आ रही है बस आप बात किए जा रहे हैं। लेकिन सेकंड में कहना चाह रहा है यस लेस स्पॉन्टेनियस। बिजनेस कम्युनिकेशन में हम लेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, वी आर सो कॉन्शियस अबाउट इट। Careful thought and consideration would be applied to writing a report or memo to a client। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा बेटा रिपोर्ट और मेमो में क्या फ़र्क होता है, बट ये बिजनेस में रिटर्न कम्युनिकेशन के डिफरेंट मीडियम में जो इस्तेमाल होते हैं। सो केयरफुल थॉट हमें बड़ा सोच समझ के बिजनेस में कम्युनिकेशन करनी होती है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट, वेदर इन द फॉर्म ऑफ अ मेमो, लेटर, सर्कुलर्स, ईमेल टू अ क्लाइंट बिफोर सेंडिंग इट टू इंश्योर इट इज एक्यूरेट एंड डजंट क्रिएट अनड्यू रिस्क फॉर द सेंडर। ठीक है जी। अगर आपने ऐसी वैसी कोई कम्युनिकेशन कर दी कि जो ज़रा प्रोफेशनल वे से हट के थी तो ये सेंडर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उस इंडिविजुअल पर्सन के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। फॉर्म्स ऑफ एड्रेस वुड often be more formal with terms such as Mr. or Sir or /Madam being commonly used। ठीक है जी। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आपने बेटा जब भी आपने फॉर्मल कम्युनिकेशन करनी होती है तो हम कैसे एड्रेस करते हैं, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैडम, ओके। या बड़ों को मुखातब करते हैं तो जरा रिस्पेक्टफुली बुलाते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में जब हम बुलाते हैं तो बड़ा रिस्पेक्टफुली बुलाते हैं, लेकिन जब इनफॉर्मली बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं आपको पता ही है, अपने कल्चर में कैसे बुलाते हैं, ओए, हाय। तो ये इस तरह से जो बुलाना है वो क्या है, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है जी। ओके, सो आई एम डन विद द टाइम। I hope you understood. So I'm going to continue from here, the contextual factors, and okay. So let me repeat quickly that what I have gone through today. I have gone through this lecture distortion. First of all, I have gone through distortion. Distortion बेटा क्या होता है कि distortion में क्या होता है बेटा? Just recall distortion में क्या होता है? ठीक है, okay. So distortion में बेटा ये होता है कि जो सेंडर मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है, रिसीवर उसके मुताबिक मैसेज को क्लिक नहीं कर पाता। ठीक है, रिसीवर्स को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ये सिर्फ रिसीवर के एंड पे प्रॉब्लम नहीं होती, ये सेंडर के एंड में प्रॉब्लम हो सकती है कि रिसीवर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। समटाइम आपके पेरेंट्स आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि बच्चे की साइकोलॉजी कुछ और होती है। बच्चे की जिस तरह से आप सीए कर रहे हो, प्रॉब्लम यू आर नॉट फिट इनटू द सीए। हो सकता है समटाइम यू आर नॉट फिट इनटू द सीए। कुछ बच्चे होते हैं जो मेडिकल में फिट इन होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो आर्ट्स में फिट इन होते हैं, कुछ बच्चे हैं जो बिजनेस में फिट इन होते हैं, बट उनके पेरेंट्स कहते नहीं बेटा आपने डॉक्टर ही बनना है, आपने इंजीनियर ही बनना है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है। तो उस वक्त वो आपको मिस इंटरप्रेट कर गए। तो ये दिस इज आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ द डिस्टॉर्शन। इन दोनों एंड पे होती है, रिसीवर के एंड पे भी होती है और सेंडर के एंड पे भी होती है। दिस वी डिस्कस इन डिटेल बिफोर। देन मैसेज। अब मैसेज जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, आज जो मैंने आपसे कम्युनिकेशन की है उसके पीछे एक मैसेज है, और मैसेज बड़ा एक शॉर्ट सा मैसेज आप ग्रैस्प करते हो कि आज मैंने इस लेक्चर में ये सीखा। वो 2-4 लाइन्स ही होती हैं जो जिनका आप समरी बना के अपने ध्यान में रखते हो कि आज इस लेक्चर से मैंने ये अंडरस्टैंड किया।
ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा जी फीडबैक, कि जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, जब मैसेज डिलीवर हो जाता है थ्रू मीडियम के थ्रू, मतलब मीडियम के थ्रू हम डिफाइन करते हैं, चैनल थ्रू हम उसको ट्रांसफर करते हैं, और जब मैसेज डिलीवर हो जाता है टू द रेसिपिएंट, तो फिर हमने उसको कंफर्म भी करना होता है कि रिसीवर उसको कितना अंडरस्टैंड किया है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग उसके माइंड में है, वी डोंट नो हाउ मच ही अंडरस्टूड, उसका कोई फिजिकल कोई विजिबल कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वी कैन जज इट आउट। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, in order to visualize, in order to make it visualize how much you understood what the sender is communicating with you, so we're going to have the feedback, और जो feedback होता है वो एक half feedback भी होता है, like not giving complete feedback, और एक होता है complete feedback। अब जो less feedback होता है उसमें होता है कि बेटा you just confirmed it, yes I received something, okay, like I received the books from the ICAP, but just receiving the books is not something that you understood the books. Okay, so when you understood the books, when you understood the lectures, then you give the feedback, that's the real feedback. Then you give a complete feedback जिसमें person 1 person 2 को पहले बताता है, फिर person 2 उसको understand करता है, फिर again person 2, फिर again person 1 person 2 से पूछता है हाँ जी जो आपको समझाया था, जो आपको पढ़ाया था, वो आपको कितना understand हुआ। Then उसके बाद मैंने नया टॉपिक शुरू किया, that's a context। कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया कि हर सिचुएशन के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं। लाइक अगर आप बाजार में जाएं तो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, मस्जिद में जाए तो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, अगर आप शादी हाल में जैसे कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, क्लास में जैसे कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, बिजनेस में जैसे कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, बैंक में जैसे कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, तो हर जगह कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। फिर ये रिलेशनशिप बेस्ड भी होता है कि अगर रिलेशनशिप हमारा फ्रेंडली और फ्रैंक रिलेशनशिप है तो देन गोना हैव द इनफॉर्मल वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्मल एंड वर्सेस इनफॉर्मल, बट आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, उसमें पहला हम जो फैक्टर पढ़ा है दैट्स अ फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। और फॉर्मल बेटा क्या होता है कि जहाँ पे हमारा रिलेशनशिप डिस्टेंट होता है, इतना फ्रैंक नहीं होता, सीरियस रिलेशनशिप होता है, उस पर्सन से फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं, या वो पर्सन आपको इतनी स्पेस नहीं देता टू हैव अ कम्युनिकेशन विद यू, सो दैट्स अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। और एक ऐसा रिलेशनशिप कि वो पर्सन आपको क्विकली जो है वो आपसे घुल मिल जाता है, आपसे फ्रैंक होता है, आपसे कम्युनिकेशन करता है, ओके, आपसे हंसी मजाक करता है, तो दैट इज कॉल्ड द, या अनदर वे अराउंड कि जहाँ पे आपका रिलेशनशिप इतना क्लोज नहीं होता, वहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, और जहाँ पे रिलेशनशिप आपका बहुत क्लोज हो जाता है दैट्स अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, और फिर लास्ट में ये बताया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम जो कॉल करते हैं वो डियर सर कह के कॉल करते हैं या रिस्पेक्टफुली कॉल करते हैं। जब बुलाने से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर रिलेशनशिप की नोयत क्या है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। जब किसी को बुलाते हैं हाय, मीन दिस रिलेशनशिप इज इनफॉर्मल। बुलाते हैं एक्सक्यूज मी, मीन रिलेशनशिप इज फॉर्मल। सो इनिशियली हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं वहीं से हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा रिलेशनशिप फॉर्मल है इनफॉर्मल है। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, आई एम डन विद lecture number 7. Best of luck.